Assalamu alaikum dear students. Welcome to Apes English Grammar, and today the topic of my lecture is use of a and an. Use of a and an. Inshallah we will explain this topic in Urdu and also in Pashto, but first we start with English. So the use of a and an. Where will we use a and an? So come to the topic. If the word is a singular, if the word is a singular noun or it is a singular number, then we will use a. We will use a. For example, a chair. A chair. Because this is a singular noun and starting with a consonant. We will use a if the word is a singular and the first letter is consonant. All those words starting with a consonant words, we will use a. We will use a with before if the first word or letter is consonant. Here C is a consonant, so we will use a. Here T is a consonant in a table. The first letter is a T, which is consonant, so we will use a. Same is the case, a book, a dog, a goat, a cow. C, chair. The first letter is C, which is consonant. Table. The first letter is a consonant. So we will use A. In a book, the first letter is consonant. B is a consonant. Dog. D is a consonant. Goat. G is a consonant. Cow. C is a consonant. So all those words which are singular and start with a consonant, then we will use a. We will use a. Now come to the use of an. Now we explain the use of an. So all those words which are starting with vowels and producing a vowel sounds, we use an. For example, an apple. An apple, because the A is a vowel. A is a vowel and producing vowel sound. An apple. An egg. An egg, because the first letter is vowel and producing sound of vowel. An elephant. An elephant. So all those singular numbers which are starting with a consonant, we use a before them, and all those singular numbers which are singular and starting with a vowel letter or vowel sounds, we use an. We use n. But there are some exceptional cases also. Here on another side we come to the whiteboard. Here the word is our. The first letter is a consonant. The first letter H is a consonant, but here we will use n. Here we will use n. An hour. Hour. An hour, because here this word produce a vowel sound. This word produce a vowel sound. Same is the case, an
honest and honest. Here we use N because it produces a vowel sound. An honor, an honor, an hour, an honest, an hour. M-A, M-A, N, M-A, because M-A also M-A also produce a vowel sound. But on another side, university, we will use a university, because it does not produce a vowel sound. A universe, here the first letter in university and in universe are vowels, that is U, but we will use a because university and universe doesn't produce vowel sound. So now come to उर्दू लैंग्वेज एप्स इंग्लिश ग्रामर में खुशामदीद। आज हम यूज़ ऑफ ए एंड एन, ए और एन का इस्तेमाल पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर्स। तो तमाम ऐसे नंबर्स, ऐसे नाम जो कि सिंगुलर हों, जो कि एक हो, वाहिद हो, और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो। किस चीज़ से स्टार्ट होते हो? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो, उनसे पहले हम ए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम अल्फाज जो सिंगुलर हो, वाहिद हो, और उसका आगाज़ कॉन्सोनेंट लेटर से हो, कॉन्सोनेंट हर्फ से हो, उससे पहले हम ए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अ चेयर, यहाँ पर सी जो है कॉन्सोनेंट है। अ टेबल, टेबल में टी कॉन्सोनेंट है। अ बुक, बुक में बी कॉन्सोनेंट है। अ डॉग, डॉग में डी कॉन्सोनेंट है। अ गोट, गोट में जी कॉन्सोनेंट है। अ खव, खव में सी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर 6 के 6 अल्फाज जो हैं, इसमें पहला वर्ड लफ्ज़ लेटर क्या इस्तेमाल हुआ है? कॉन्सोनेंट। इसलिए हम पहले, इससे पहले हम ए लगाएंगे, क्योंकि ये है भी वाहिद, एक को ज़ाहिर कर रहा है, और इसका स्टार्ट जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट से हुआ है, इसलिए हम ए इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं। ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन, ऐसे इसम जो कि वाहिद हों और वो वावल से स्टार्ट होते हों। वावल मैं पहले बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कि वावल क्या हैं और कॉन्सोनेंट क्या हैं। तो जो वो अल्फाज जो वावल से स्टार्ट होते हैं, उसे हम पहले, उससे पहले हम एन इस्तेमाल कर। फॉर एग्जांपल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन इग, एन इग, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। ठीक है। अब ये तो हो गया जो स्टार्ट हो रहे हैं वावल से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वावल से स्टार्ट हो और एन इस्तेमाल करें। जैसे आप इस तरफ आ जाएं, एन और, यहाँ पर एच जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम एन इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये आवर, एन आवर, ये कॉन्सोनेंट आवाज़ पैदा कर रहा है। एन ऑनेस्ट, ये भी वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एन ऑनर, ये भी वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एन एम में, यहाँ पे भी हम एन एम में इसलिए लिखते हैं कि ये वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस तरफ आए, यहाँ पे यू, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स दोनों में ये यू जो है क्या है? वावल है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? आई यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यू, ये का लफ्ज़ प्रोड्यूस कर, अलिफ का नहीं प्रोड्यूस कर रहा। यूनिवर्स, ये भी ये का लफ्ज़ प्रोड्यूस कर, अलिफ की आवाज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहा। इसलिए हम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स से पहले ए लगाएंगे, जबकि एम में
ऑनर, ऑनेस्ट और से पहले एन लगाएं क्योंकि चारों के चार एन आवर अलिफ की आवाज़ पैदा कर, ऑनेस्ट अलिफ की आवाज़ पैदा कर, ऑनर अलिफ की आवाज़ पैदा करा, एम में अलिफ पहले आ रहा है तो इसलिए हमने एन लिख दिया, जबकि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के केस में हमने क्या कर लिख दिया, ए यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, ये क्या क्या आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नन ममुरा यूज ऑफ ए एंड एन वायु कचेरे टकाए कचेरे अल्फाज कचेरे नाउन इसम सिंगुलरी वाहिदी यवी कॉन्सोनेंट लफ्ज लेटर नशुरी सलाई नमुरा ए लगाओ कॉन्सोनेंट मुरा वैल्यू चे चोदी 21 थी पिंजो वावल दी कचेरे कॉन्सोनेंट चेयर कॉन्सोनेंट नशुरी टेबल टी नशुरी सला कॉन्सोनेंट था बुक बी नशुरी सला कॉन्सोनेंट था डॉग डी नशुरी सला कॉन्सोनेंट था जी गोट जी नशुरी सला कॉन्सोनेंट था काउ सी नशुरी सला कॉन्सोनेंट था नो जब चिकला कॉन्सोनेंट लेटर नशुरी सी आ यौ ज़ाहिरई पे उम्रा ए मख्ता होता लगो दगा से ची यौ ज़ाहिरवी आ वावल नशुरी सलाई आ वावल आवाज़ की पे उम्रा एन लगो लके एन एप्पल एन एग एन एलिफेंट हो दगा से मलगरो दास टिकी दी ची आगा दे वावल आवाज़ पैदा की मख्ता अवल वावल नस्तवरता हो आवाज़ दे वावल पैदा की अवल अवल अलिफ वतरा जीला का आवर एन ऑनेस्ट एन ऑनर एन एम ए नो देता अवल अलिफ आवाज़ पैदा की नो दात शदी वावल साउंड पैदा की नो मुरा एन औरता लगो अगरचे वावल मख्ता नस्तवरता आवाज़ न दे वावल पाल पैदा की जके मुरा एन औरता लगो जबकि दलता वावल दी हो आवाज़ दे वावल न पैदा की जके मुरा छ औरता लगो ए यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्स तो नो देजी पोरे नन इंशाल्लाह दा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक सर बे इंशाल्लाह मिला कीजू आगा पूरी इजाज़त वाड़ी दा अल्लाह पानाम अल्लाह पामान यकी उम्मीद लरू चिता से बा यूज़ ऑफ ए एंड एन पे इस्तेमाल बाने पोई सुलियो डेरा मनना अस्सलाम वालेकुम।